As you know that I have started a new lecture series which is based on fluid mechanics, and this lecture series will complete entire fluid mechanics, including a lot of question which is already came in GATE, IES and IS exam. Okay, so this will be helpful for mechanical engineering as well as for civil engineering students. So I have already completed 2 lectures. So if you have not watched, please watch those lecture as well. Okay, so this is the lecture number 3. So today I'm going to see some more basics of properties of fluid, that is chapter 1 if you go through any fluid mechanics book. Okay, so this is about myself. I am IIT Bombay alumni, and I'm the former assistant professor in the Department of Mechanical Engineering. Okay, so anyway, let's see the lecture number 3 of fluid mechanics. Okay, so in the last lecture I have completed few questions. I think 4 questions I have done. So this is the question number 5. So actually I will cover more than 100 questions that already I told in the previous lecture. In this lecture, okay, more than I think 120 something questions are there. So those all questions we'll see here one by one. So this is the question number 5. And one more thing, this question is directly from the exams like GATE, engineering services and civil services. Okay, from the prelims and mains, from both. Okay. Yeah, okay, so let's see this question number 5. The velocity distribution of flow over a plate is given by this equation: u is equal to 0.5 y minus u square, where y is the distance above the fixed plate. If the viscosity of fluid is 0.9 Newton second per meter square, then find the shear stress at 0.2 meter above the plate. Okay, so they have given the velocity distribution and they are asking what is the shear stress. It's a very simple question anyway. Let's see that. Okay, so u is equal to 0.5 y minus y square is given. Okay, so they are asking for shear stress. So we have seen there Newton's law of viscosity, that is tau is equal to mu du by dy. Okay, so first you get the du by dy. ओके, पहले आप du by dy को निकाल लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो और एट y is equal to 2 पुट कर दो, you will get du by dy. Okay, and mu is given 0.9, so tau is equal to mu du by dy, that we have seen in the previous lecture. So just multiply mu into du by dy, so 0.9 into 0.1, so you will get 0.09. Okay, so this is the answer. It's a simple question, no problem. Fine, so we are going to see some more theory part, and actually it is like basics of properties of fluid. So this is nothing but it's like compressibility and elasticity K. So compressibility is denoted by beta and elasticity is denoted by K. Okay, so what you do, you consider a solid body, let's say its volume is V. Okay, its volume is V. So what you do, you apply a pressure on this solid body. Okay, तो मान लो अगर आप dp प्रेशर लगाते हो चारों साइड, I mean सारे साइड से, तो क्या होगा, it will reduce to dv वॉल्यूम. Okay, इसका वॉल्यूम होगा dv से चेंज हो जाएगा, that is nothing but dv. Okay, so what happened, this compressibility is reciprocal of elasticity. So beta is equal to 1 by k. So we want to get expression of compressibility and elasticity and what is physical significance of that. So this is denoted by k, is also noted bulk modulus of elasticity. Elasticity जैसे बोल रहे हैं तो आपको E भी सोच सकते हैं कि Young's modulus सोच सकते हैं, but no, here since we are dealing the solid, so it is like for the solid it is bulk modulus of elasticity, that is k. So it is nothing but it is a reciprocal of bulk modulus of elasticity. Beta is equal to 1 by k. And k, okay, if you have studied strength of material, you have already seen this. K is, it is a ratio of volumetric strain to stress to volumetric strain. Okay, so मैं strength of material का भी lecture series करूँगा बाद में, तो ये सब चीज़ें anyway रिपीट होगी, बट यहाँ पे बस आप ये समझ लो, it is
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, दिस विल बी dp, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, आई मीन चेंज इन लेंथ, जब नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो सिंस यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को डील कर रहे हैं, सो इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड वी हैव टू पुट माइनस साइन बिकॉज ये रिड्यूस हो रहा है, जब हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर। Okay, so if you simplify this, you'll get expression for K, that is minus VdP dP by dV. Okay, so this expression will get. So it is nothing but, that is equation 1, that is K is equal to minus V dP by dV. Okay, so using this expression, we are going to derive a relation for compressibility beta. Okay, that we are going to derive. So let's see that. सो ओके, देखिए आपको पता है m इज इक्वल टू रो वी, जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, इसको m को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेंसिटी और वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। ओके, सो वी कैन से दैट रो वी इज इक्वल टू सी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ओके, चेन रूल लगा दो, तो पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे सी को, you'll get 0. So rho dv plus v dv, v d rho is equal to 0. अब आप इसको ऐसे लिख लो, rho dv is equal to minus v d rho. Okay, now you can get dv by v, ये मिल जाएगा हमें minus rho by rho, minus d rho by rho. This you consider equation 1. So now what you do, you know from the previous equation number 1 and equation number 2 equate dv by v। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी बात हो रही है, हम लोग देखे थे इससे पहले k इज इक्वल टू dp माइनस dv by v। अब यहाँ पे आप उठा के इस वैल्यू को रख दो, इस वैल्यू को यहाँ पे आप रख दो। ओके, अब इसको जैसे रखोगे, यहाँ पे एक्चुअली दिस विल बी प्लस, अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, सो दिस विल बी प्लस। सो k इज इक्वल टू dp d rho by rho, तो आपको मिल जाएगा बीटा। अब बीटा क्या था, 1 by k, अब हम लोग इससे पहले देखे थे, तो बीटा हो जाएगा d rho by rho dp। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बीटा, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, d rho by rho dp। सिंपल डेरिवेशन है। ओके, जस्ट मास को रो v कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो और dv by v लिख लो, उसको k वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, यू विल गेट बीटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बीटा का। अगर मान लेते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो अगर आप डी रो लिखोगे तो इट विल बी 0। अगर डी रो 0 है तो बीटा भी 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये बीटा अगर हमारा 0 है तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज कंप्रेसिबिलिटी, और अगर बीटा 0 इट मीन्स व्हाट, इनकंप्रेसिबल। ओके, सो इफ बीटा इज 0, somehow if you are getting beta 0, so it means incompressible fluid. Okay, so you can see what is significant. So using beta we can say what kind of fluid is compressible or incompressible. Okay, so if beta is not 0, so it will be compressible fluid. If it is 0, then we can say incompressible fluid. Okay, so it's a simple derivation, you can remember it. Anyway, we'll okay, so few more things, just you can say the physical significance. Okay, physical significance of बीटा एंड के। सो देखिए जो की वैल्यू होती है, इट्स ए स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 0.01 मेगा पास्कल फॉर द एयर, और इट इज 2060 मेगा पास्कल फॉर द वाटर, एंड इट इज 2060 मेगा पास्कल फॉर द स्टील। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इस चीज से हमें क्या इंटरप्रेट करते हैं, जो एयर है, air is 20,000 times more compressible than water. Obviously we can see from here, यहाँ से आप देख सकते हो। उसी तरीके से water is 100 times compressible than steel, उसको भी आप यहाँ से इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करके देख सकते हो, आप डिवाइड करके देख सकते हो। ओके, सो एयर इज 20,000 times more compressible than water, and water is 100 times compressible than steel. Okay, so this is the physical significance of K. Okay, next topic, it is surface tension
आई थिंक यू एवरीबडी नो दैट व्हाट इज सरफेस टेंशन. आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है. सो इट इज एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ इट्स लिक्विड टेंस टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया. ओके, तो सरफेस टेंशन कुछ नहीं, ये क्या करता है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट इट्स टेंस टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है सरफेस टेंशन. ओके, वो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि नो रेन, बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप होते हैं, ठीक है, वो स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं, वो हेक्सागन फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म में क्यों नहीं होते, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. वो वाई दे लुक लाइक सर्कल. उसका रीजन ये है कि जो उसका जो सरफेस है, जो लिक्विड तो लिक्विड ही है ना, वो क्या करता है, वो चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमम हो. तो इट इज it is a circle which has minimum surface area. That's why the raindrop is look like a circle. Understood? So it is like best example of surface tension. For water, okay, sigma, it is denoted by sigma. इसका अगर आप फॉर्मूला पूछते हो मेरे, F by L होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, so it is like 72.5 10 to the power -5. इट्स a स्टैंडर्ड वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर. आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, मरकरी के लिए होता है 520 इंटू 10 टू द -5 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेंटीमीटर. देखिए ये वैल्यू बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें वो सिग्मा की वैल्यू दिए नहीं होते, बट दे विल आस्क यू. ओके, जैसे कैपिलैरिटी में या फिर जिसमें भी सिग्मा है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो दे कंसीडर लाइक नो द स्टैंडर्ड वैल्यू. ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मरकरी. कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं. तो अगर मान लेते हैं वो नहीं दिए हुए, यू जस्ट मेमोराइज फ्रॉम हियर. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन मोटो ऑफ टेलिंग यू व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी. वाटर का काफी लोगों को पता होता है, बट मरकरी का नहीं पता होता. तो इफ यू डोंट नो, प्लीज रिमेंबर फ्रॉम हियर दैट इज 520 इंटू 10 टू द -5 न्यूटन पर सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे चीज देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ओके, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ओके, ड्यू टू दिस कॉज वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ओके, तो अब वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहीं से आता है. कोई भी लिक्विड वेपर में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इसका सरफेस टेंशन कम होता जाता है. सरफेस टेंशन कम होगा तो वो फिर वेपराइज होने लगता है. ओके, तो यहाँ से देखिए आप काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सोच सकते हैं. सो वेपराइजेशन इज डन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ओके, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी. It's like very important formula and very nice and very important derivation. Okay, so it's like very basic. So if you go to any of the PSU interview or BARC interview or in any engineering related interview, so they can ask you this derivation. I have seen even one time they have asked to me also, so I have done that. So you please see how this derivation is going on. So the first is inside the लिक्विड ड्रॉपलेट. ठीक है, जैसे कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, जैसे बारिश होती है तो जो लिक्विड बारिश होती है उस वो जो ड्रॉपलेट है उसमें एक्सेस प्रेशर कितना है, उसके अंदर प्रेशर कितना है. ओके, वो वी आर गोइंग टू ड्राइव. सो इट इज लाइक एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड ऑफ ड्रॉपलेट. तो मान लो दिस इज योर ड्रॉपलेट जिसका रेडियस r है. Okay, just to consider like this is a droplet और इसका रेडियस r है. ओके, सो आपको करना क्या, यू जस्ट डू इन 2 हाफ, इसको 2 हाफ में कर दो. ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट है ये दिस पार्ट, ओके, हाफ पार्ट को एनालाइज करो. जैसे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप उसको कट करके अगर देखोगे, साइड से देखोगे तो दिस पार्ट इट विल लुक लाइक दिस. ओके, अब इसमें है क्या कि जो सरफेस है, जो हमारा सरफेस है, जस्ट आई विल चेंज द पेन. ये देखिए, ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे क्या है, सिग्मा लगेगा. देखिए, जो हमारा नाम ही सरफेस टेंशन ऑब्वियस सी बात है, तो सरफेस पे लगेगा. तो जो इसका सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट पर, उस पे हमारा सिग्मा लगेगा पूरा का पूरा, आप देख सकते हो. ओके,
ये दिस वन, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सारा का सारा जितना भी सरफेस है उस पर सिग्मा लग रहा है। और जो अंदर का है, मतलब जो सरफेस के बाद जो पूरा पूरा जो पोर्शन है, जैसे आप कट करोगे तो सर्कल टाइप का दिखेगा ना बीच में, उसके अंदर हमारा प्रेशर ऐड होगा, तो वो प्रेशर हमें डराइव करना है। सो इट विल बी प्रेशर अंदर की तरफ में लगेगा और सरफेस टेंशन बाहर की तरफ में लगेगा, प्रेशर अंदर की तरफ में लगेगा। ओके, सो प्रेशर विल एक्ट अंदर की तरफ में और सिग्मा वो बाहर की तरफ में लगेगा हमारा। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का फोर्स, दोनों की वजह से फोर्स बराबर होगा, चाहे वो सरफेस टेंशन हो चाहे प्रेशर हो, तो वो फोर्स को हमें इक्वेट करना है। ओके, सो अंडर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अब देखिए ये हमारा जो सिग्मा है वो सरफेस पर लग रहा है, तो व्हाट इज सरफेस एरिया, 2πr। सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, वो जो पूरा लेंथ है, क्योंकि ये देखिए जिसकी यूनिट कितनी होती है, सिग्मा इंटू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो हमें क्या चाहिए, हमें तो लेंथ ही चाहिए ना, तभी तो मीटर कटेगा तभी फोर्स होगा। सो दिस लेंथ एक्चुअली वी शुड नो दैट। ओके, ये लेंथ हमें चाहिए 2πr, दिस इज 2πr ये पूरा। सो दैट्स वाई दिस सिग्मा इंटू 2πr, और ये अंदर की तरफ में प्रेशर है वो πr स्क्वायर है, पूरा सर्किल का एरिया, ये अंदर की तरफ में सर्किल, दैट इज 2πr, I mean sorry πr। ओके, πr। ओके, सो दोस्तों सिग्मा इंटू 2πr, और अंदर की तरफ में जो प्रेशर लग रहा है दैट इज p इंटू πr स्क्वायर। अभी हमारा r से r कट जाएगा। ओके, r से r हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ओके, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट p इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई r। इसको डायमीटर के टर्म में भी लिखता है, p इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई d, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, सो कई बार डायमीटर के टर्म में दिया तो 4 सिग्मा बाई d, और अगर रेडियस का टर्म में दिया है 2 सिग्मा बाई r। तो वाटर ड्रॉपलेट के जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसमें एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी होती है 4 सिग्मा बाई d और 2 सिग्मा बाई r। ओके, so this is the thing, it's like very simple and very basic derivation, you please remember this। अब देखिए इससे पहले वाला जो था उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। तो मान लेते किसी प्रॉब्लम में अगर वो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक, अगर जब तक नहीं बोल रहा है कि लगाना है तब तक आप मत लगाओ, ठीक है, जब बोलेगा लगाना है तभी लगाओ। तो अगर मान लो कि बोल दिया कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कम है, ओके, तो अब ये हम लोग देखें, ये चीज देखें कि सरफेस पे हमारा सिग्मा और सरफेस पे सिग्मा और अंदर की तरफ में पी है, और क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, जो हम लोग इससे पहले जो इक्वेशन लिखे थे अंडर इक्विलिब्रियम, उसमें हमें प्रेशर वाला भी कंसीडर करना है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक डायरेक्शन में होंगे, और फोर्स ड्यू टू प्रेशर वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। सो अगर आप उसको इक्वेट करोगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू 2πr प्लस p इंटू πr स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू πr स्क्वायर। ओके, सो p एटमॉस्फेरिक इंटू πr स्क्वायर एंड p इंटू πr स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करो, p के लिए सिंप्लीफाई कर लो। ओके, आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कुछ नहीं, यहाँ से पाई कट जाएगा, यू कैन कैंसिल आउट पाई, सो यू विल गेट 2 सिग्मा r, देखो r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा। ओके, अब क्या करो, आप सिंप्लीफाई कर लो, p जो भी चीज़ बच रही है यहाँ से p के लिए सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर p। दैट इज नॉट, वो फॉर्मूला नहीं है, अगर ऐसा p एटमॉस्फेरिक बोल देता तब ऐसे इक्वेट करो और p के लिए सॉल्व कर लो। ओके, और अगर आप फॉर्मूला के टर्म में चाहते हो तो आप p को यहाँ से लिख के इसको भी याद भी कर सकते हो, बट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू नो दिस सिंपल डेरिवेशन यू कैन इजिली गेट द आंसर। ओके, सो दूसरा होता है, 3 टाइप के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, सोप बबल और वाटर जेट। ओके, लिक्विड जेट, नॉट वाटर जेट, लाइक लिक्विड बोले वाटर बोले जो भी, जेट, 3 चीजें होती हैं, तो बारी बारी से तीनों को देखेंगे। अब देखिए दूसरा है एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड सोप बबल। अब देखिए अगर आपको ड्रॉपलेट वाला पता है,
हाउ टू डराइव फॉर द ड्रॉपलेट, देन सोप बबल का कुछ नहीं है, क्योंकि सोप बबल जैसे आप नहाते हो तो ना बबल्स बनते हैं साबुन के, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो लेयर होता है, एक आउटसाइड लेयर होता है, एक इनसाइड लेयर होता है, और बीच में एयर भरा होता है। ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें चूंकि दो लेयर है तो बस सरफेस टेंशन वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, और बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम होता है। ओके, सो देयर आर 2 सर्फेसेस इन केस ऑफ सोप बबल। तो अगर 2 सरफेस होंगे तो दोनों पे सरफेस टेंशन लगेगा, और उसकी थिकनेस को जनरली निग्लेजिबल कर रहे हैं। अभी इस वाले डेरिवेशन में निग्लेजिबल करें, अभी आगे वाले में देखेंगे कि जो दोनों आउटसाइड और इनसाइड लेयर है उसकी थिकनेस को जब कंसीडर करेंगे तो भी एक इक्वेशन होगा, और मान लेते हैं कि निग्लेजिबल है तो ये वाला डेरिवेशन है उसके लिए। ओके, सो देर इज 2 लेयर्स, सो 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा बताने की जरूरत, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में काफ़ी टाइम ले लिया था। ओके, सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 4 सिग्मा बाई आर। ओके, सो उस वाले में कितना आया था 2 सिग्मा बाई आर, इसमें क्योंकि डबल कर दो इसको तो 4 सिग्मा बाई आर होगा, अगर डायमीटर के टर्म में लिखना है तो 8 सिग्मा बाई आर होगा। ओके, सो इट्स लाइक 4 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी। ओके, रेडियस के टर्म में 4 सिग्मा बाई डी, डायमीटर के टर्म में 8 सिग्मा बाई, सॉरी रेडियस के टर्म में 4 सिग्मा बाई आर, डायमीटर के टर्म में 8 सिग्मा बाई डी। ओके, जस्ट इट विल बी जस्ट डबल ऑफ water droplet. Okay, so I don't think is like, you know, it's like very difficult, you can easily understand for the soap bubble. So please remember, for droplet it is 2 sigma by r, for soap bubble it is 4 sigma by r. Now we are going to, अगर मान लो कि थिकनेस भी दिया हुआ है, जो 2 लेयर है उसकी थिकनेस मान लेते हैं t है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे t है, पहले वाले में नहीं माना था, तो क्या होगा, सिग्मा दोनों सरफेस के लिए अलग अलग हो जाएगा रेडियस, पहले वाले के लिए मान लेते अंदर वाले के लिए है, अंदर वाले के लिए r है तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर, प्लस दूसरे वाले के लिए रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस टी, तो सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर प्लस टी, और उसके बाद नो प्रेशर लगेगा दूसरे डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा p इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आर हमारा कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है यहाँ पे बीच में, तो आर कैंसिल नहीं होगा, तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन 2 सिग्मा 2 आर प्लस टी बाई आर स्क्वायर। तो अगर थिकनेस को भी कंसिडर किया जा रहा है, ओके, ऑफ फिल्म, देन दिस विल बी द एक्सप्रेशन 2 सिग्मा इंटू 2 आर प्लस टी बाई आर स्क्वायर, बट इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग द थिकनेस देन इट विल बी 2 sigma by r, 4 sigma by r. Okay, this is the thing. I hope you are understanding. Next, अभी ये थोड़ा सा डल है क्योंकि आई थिंक स्कैन उतने अच्छे से नहीं हुआ है। एनीवे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इफ यू आर, आई मीन आई थिंक यू कैन सी दैट। देखिए, अब तीसरा है एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड जेट। ठीक है, जिससे मान लेते हैं ये हमारा ऐसा है और यहाँ से हमारा जेट जा रहा है ऐसा। ठीक है, हमें क्या करना, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया, तो अब इस चीज को हम एनालाइज करना, इस वाले पोर्शन को हम एनालाइज करना है। इट विल बी लुक लाइक अ सिलेंडर, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इट विल बी लुक लाइक अ सिलेंडर, यूजुअली वी कैन सी हियर इज अ सिलेंडर। ठीक है, अब आप क्या, जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, अब क्या करो, आप इसको 2 हाफ में कट कर दो। ठीक है, इसको 2 हाफ में कट करने के बाद अब इसके हाफ पोर्शन को हम एनालाइज करना है। तो दिस इज द हाफ पोर्शन, दिस इज द हाफ पोर्शन, ओके, दिस, ओके, दिस इज द हाफ पोर्शन, या ओके, इट्स लेंथ इज एल। ठीक है, मैं लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, इस वजह से मैं इसको दोबारा से ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ। ओके, सो एल। अब क्या है, ये देखिए, ये this is the surface, this is the surface and this is the surface। ये surface नहीं है, ये this is not a surface, okay, क्योंकि वो liquid है वहाँ पे, it's not a surface, only surface is this। so और इसी पे हमारा सिग्मा लगेगा, इसी पे सिग्मा लगेगा, ठीक है, और अंदर की तरफ का जो एरिया है उस पे हमारा पी लगेगा, अंदर की तरफ में हमारा पी लगना है। ओके, सो अब ये सिग्मा किस पे लग रहा है, 2l पे लग रहा है, ये l, और इस ये वाला L है और ये वाला L है, तो
एट इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा इनटू 2L। ओके, दिस इक्वल टू जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर किस पे लगेगा, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये डायमीटर है, दिस इज 2R, दिस इज 2R। ठीक है, आप समझ लो 2R। ओके, सो 2R, दिस इज 2R। अब ये एरिया कितना होगा, 2R इंटू एल। ओके, 2R इंटू एल, ये दोनों हमारा एरिया हो जाएगा। दिस इज एरिया फॉर द प्रेशर, 2R इंटू एल। ओके, सो ये जो हमारा प्रेशर है इसके बराबर, इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर में जो फोर्स होगा प्रेशर की वजह से, दिस P इंटू ए। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको P इंटू 2R इंटू एल। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो ना, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यू विल गेट P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर, सिग्मा बाई आर, नॉट आर इंटू आर, सिग्मा इंटू आर। सो दिस इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी इन अ लिक्विड जेट, सिग्मा इंटू सिग्मा बाई आर। ओके, मैंने ये दोबारा इस चीज़ को लिख दिया है इस वजह से, ताकि आपको अगर जो इसमें थोड़ा सा डल था अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज देयर। दिस इज P इंटू 2R इंटू 2R। ओके, सो इट्स लाइक सिंपल। तो अब देखिए है क्या, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या होता है 2 सिग्मा बाई आर, सोप बबल का क्या होता है 4 सिग्मा बाई आर, और फॉर वाटर जेट इट इज सिग्मा बाई आर। सो यू प्लीज रिमेंबर दीज 3 formulas. It's like you can get, I have seen many question in engineering services, even in GATE or civil services. This question came like very frequent, so you please remember. But actually this derivation is also important for the interview, as I told you earlier. Okay, so please remember this. Okay, now the one more topic is like capillarity. Okay, ये इतना टफ नहीं है, इसको देख लेते हैं। Capillarity is defined as phenomena of rise and fall of liquid surface related to general adjacent level of liquid. Capillary comes into existence because of relative interaction of force of cohesion and adhesion. If the force of cohesion is less than force of adhesion, then the phenomena of capillarity rise is sense. However, if force of cohesion is more than force of adhesion, then the phenomena of capillary depression is sense. देखिए कुछ नहीं बोल रहा है कि capillary is defined as the phenomena of rise and fall of liquid surface related to its adjacent level of liquid capillary adjacent level. अब इसमें बोल रहा है कि it is like comes into existence because of relative interaction between force of cohesion and adhesion. cohesion क्या होता है कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड कोहेशन, और अपोजिट मॉलिक्यूल्स में होता है तो एडहेशन होता है। और इसमें देखिए ये बोला कि अगर फोर्स ऑफ कोहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ एडहेशन, देन फिनोमेना ऑफ लिक्विड राइज विल सेंस। तो अगर फोर्स ऑफ कोहेशन जो इट इज लेस देन फोर्स ऑफ एडहेशन, तो देन राइज विल सेंस, एंड इफ इट इज लाइक फोर्स ऑफ कोहेशन इज मोर देन फोर्स ऑफ एडहेशन, देन डिप्रेशन इज सेंस। मुझे कुछ नहीं है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एक दो बार सुन लो या एक दो बार पढ़ लो, यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू derive a relation for capillarity rise and depression. I mean it's like both is same, expression is same for both the things, but I am going to derive that. Okay, so let's see that. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी डिप्रेशन। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले देखा था फोर्स ऑफ कोहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ एडहेशन, देन लिक्विड वेट द सरफेस, ठीक है, फिर लिक्विड विल टेंड्स टू राइज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन सेफ ऑफ मेनिस्कस ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉन्केव अपवर्ड्स। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। अगर आपको ये चीज पता है, ठीक है, तो आप इस फिगर को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा, लाइक इट इज ग्रेटर है तो इट इज फॉर दिस वन। तो अब देखिए इसमें ये हमारा कॉन्केव बन रहा है अपवर्ड की तरफ में, इसमें हमारा फोर्स ऑफ कोहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ एडहेशन, ये हमारा एंगल है, और सरफेस पे हमारा सिग्मा लगेगा, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल 180 माइनस थीटा। अब आप इसको इस थीटा को और
डिवाइड करो, आई मीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, सो यू विल गेट सिग्मा कॉस थीटा एंड सिग्मा साइन थीटा। ओके, और दिस इज एक्चुअली ग्लास एंड वाटर होता है। ये जो कैपिलरिटी राइज होता है वो फॉर ग्लास एंड वाटर होता है, कैपिलरिटी डिप्रेशन जो होता है ग्लास एंड मरकरी में होता है। ओके, लेट्स से इसका जो डायमीटर इज डी है और रेडियस 2r है। ओके, उसी सेम चीज अगर ये चीज रिवर्स है, फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडेशन, सो डिप्रेशन में हो जाएगा हमारा, ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा दिखेगा। इसमें भी ये सिग्मा हो जाएगा हमारा, और this angle is theta, so this will be 180 minus theta. So if you resolve in horizontal component you will get sigma cos theta 180 minus theta, और ये वाला हो जाएगा sigma sin 180 minus theta। तो अब जो कैपिलरिटी राइज और डिप्रेशन निकालने के लिए कोई सा यूज कर सकते हो, इधर इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। सो इसमें ये क्या, इसमें है क्या, हो क्या रहा है, ये जो फोर्स है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जो फोर्स है डोंट कंसिडर इज 2 सिग्मा कॉस थीटा, इसमें पूरे में सिग्मा कॉस थीटा है क्योंकि इट इज लाइक सिग्मा कॉस थीटा ओनली। ओके, 2 सिग्मा कॉस थीटा नहीं होगा। ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन का फोर्स, ये किसके बराबर होगा, ये जो वेट है लिक्विड का इसके बराबर होगा। अंडरस्टूड? बस इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और वेट ऑफ द लिक्विड, वो आपको दे देगा कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी डिप्रेशन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे इसमें नीचे की तरफ में इसका वेट होगा और ऐसे नीचे की तरफ में सिग्मा भी लग रहा है, तो इसमें दोनों को ऐड कर लो, फिर वो माइनस साइन आएगा, वो काउंटर बैलेंस हो जाता है इधर। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो लेट्स सी दैट। ओके, तो सिग्मा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। ओके, और दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू रो जी एच। ठीक है, तो अब यहां से अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, r इंटू आर, पाई से पाई कट जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई फॉर द h, सो h इज नथिंग बट 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, और अगर रो जी आर अगर d के टर्म में लिखते हैं, सो इट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। तो मैंने एक्चुअली में d के टर्म में याद किया हुआ है, सो इट इज लाइक h इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos theta rho g d। तो अगर whether it is asking for depression or whether it is asking for rise, यही होगा 4 sigma cos theta by rho g d। ठीक है, okay, so valid for both rise and fall। okay, so capillarity is sense in only when tube is less than 6 mm। देखिए अब ये जो capillarity phenomena है, अगर हमारा जो ट्यूब है वो less than 6 mm है, then only it is एप्लीकेबल। आई मीन ऐसा ही तो ही हमें राइज एंड फॉल दिखेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें कैपिलरिटी फिनोमेना दिखेगा नहीं उसमें। ओके, सो वो इट विल बी लाइक मैनोमीटर। ओके, जो हमारा ट्यूब है वो 6 mm से लेस ही होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, जस्ट लेट्स रीड दैट। द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी इज सेंस इन नैरो बोर ट्यूब वेयर द डायमीटर इज 6 mm। In tube of diameter more than 6 mm, the rise or fall is negligible। Okay, अगर वही बोल रहा है कि अगर हमारा d से ज़्यादा हो जाएगा तो rise and fall वो negligible हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, दिखेगा नहीं वैसा। Okay, therefore in order to avoid correction due to effect of capillarity, the diameter of manometer tube should be kept more than 6 mm। अब जैसे जो हमारा मैनोमीटर है उसमें कैपिलरिटी जो फेनामेना वो ना हो, जिससे ना राइज एंड फॉल ना हो, तो उसका डायमीटर जो है वो 6 mm से ज़्यादा ही रखता है। ओके, ये मैनोमीटर के केस में होता है। और अगर उससे, क्योंकि उससे कम रख देंगे तो वो भी फेनामेना आ जाएगा, तो उसकी जब हम जो भी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमें फिर कैपिलरिटी एक्शन, ये जो हमारा h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी टी है, इसके भी इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ टाइम दे टेक डायमीटर ऑफ manometer is more than 6 mm। okay, yeah, so this was the end of this lecture। so I have completed surface tension and derivation of excess pressure intensity, we have seen compressibility and bulk modulus of elasticity, and we have seen the capillarity as well। so I think we have seen a lot of derivation actually in this lecture।
So this will really help you. Next lecture, what we are going to do, we will solve some problem based on these topics, and we'll see some more concepts, and yeah. Okay, so I hope you like that. So if you don't understand anything, please comment or you mail me. I will try to sort out your problem. Okay, thank you for watching. Bye bye.